So essay, what is essay? Essay होता क्या है? What actually is essay? What is the definition of essay? Essay is basically, essay is what you say. Simple definition of essay is what you say. आप जो भी बोलें, that is essay. Now, with the Essay, essay means your take on a topic. Your take on a given topic. आपका जो भी take हो, आपका जो भी opinion हो, it can be either way. It can be for or against. सो उस पर कोई सेकंड राय नहीं होती, ये दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप इस तरह का, वो दैट solely depends on you whether to go far or against. So simple definition ऐसे की ये है कि ऐसे is what you say, what is your take on a certain topic. So taking discussion further, what are the myths about essay? First and foremost myth that we most of the time hear, please bear with me, I would be admitting other newcomers. सो सबसे बड़ा जो मिथ है ऐसे के बारे में वो ये है कि ऐसे इज दी पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. Partially true. Partially true in a sense that you cannot pass it without having uh, a functional English, without having a grip on a functional or a clear English where you can communicate your message. ये तो यहाँ तक तो ठीक है बात. But to say that it is solely the paper of English language is nothing but a myth, a hoax. Why? Because if that were the case, in fact, then all those candidates who have a very firm grip on English language, or especially those who have studied from foreign universities, or who do not speak any other language other than English, even at their houses, at their homes, especially those who are from so-called elite class, uh, then they all must have passed CSS exam in their first attempts. And in fact, what we learn most of the time that they flunk the essay. So this proves the point that the essay is not the paper of English language alone. It is the mixture of both. Rather, I would say, as far as language is concerned, you simply need a functional English. Functional English. Only functional English. You need only functional English that may be understood by a metric student, not more than that, metric student. So ये बात पहले जहन से निकाल दें कि बस ऐसे का मतलब है कि आपने हाई फाई अंग्रेजी लिखनी है तो then you would pass it. No, not at all. आपने अंग्रेजी वो लिखनी है जो एक मैट्रिक के स्टूडेंट को समझ में आ जाए. तो उसमें हम गलती क्या करते हैं यहाँ पे, गलती जो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी मेक, we keep on we keep our focus on improving the language, English language. So while doing so, what we do, we try to impress the examiner. How we try to impress the examiner? We try to memorize certain expressions, we try to memorize many idioms, we try to memorize high five words, very high frequency words. Then after doing that, we keep our focus on using those words. While we keep our focus on using those words, what we forget, or what we the focus that we lose, that is of what we are trying to convey. तो हम तो वो अंग्रेजी तो हम अच्छी लिख लेते हैं, मगर उसमें हमारा जो फोकस है वो चला जाता है, हमारा मैसेज से ध्यान हट जाता है. सो नेवर ट्राई टू डू दैट. अब ये तो होगा सिंपल सा सिंपल कॉन्सेप्ट. अच्छा, दूसरी चीज जो ऐसे के पेपर है, आपको सब आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे किस तरह से आउटलाइन बनाई जाती है. आई वुड आल्सो बी डिस्कसिंग दिस एज वेल. But remember, most important thing is to tell you what not to be done, what does not need to be done. That is more important to know, because if you know that, if we do not take this path, we would not fail. Then the only thing that we need to do,
taking that path that may enable us for a success. तो करना क्या नहीं है, एक तो वो ऐसे नहीं करने, you do not have to attend those essays जिसमें इज्म आता हो। हाँ, एक फेमस इज्म हो कोई, तो वो तो आप भले कर लें, जैसे टेररिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, यू मे अटेम्प्ट दैट। वन सेकंड प्लीज। भाई ये किसका वीडियो आ गया है? ये यार वीडियो तो अपना बंद कर दें प्लीज। ये अपना वीडियो बंद कर दें जनाब। सो आई वाज टेलिंग दैट करना क्या नहीं है, आपने वो ऐसे नहीं करने जो इज्म पे आते हों। इज्म पे ऐसे जैसे वो इज्म जो फेमस हो, वो इज्म तो आप भले कर लें, जैसे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म। बट वो इज्म जो आपने पहले कभी नहीं सुने हैं, जैसे ह्यूमनिज्म, जैसे आपका हो गया एग्जिस्टेंशलिज्म, क्योंकि ये जो इज्म होते हैं, इट इज सेड दैट दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज अ ट्रेपर। तो उसमें होता ये है कि आपको अगर उसके बारे में एक कम्प्रीहेंसिव मालूमात नहीं है, आपने अगर वो चीज़, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट पहले कहीं नहीं पढ़ा आपने ड्यूरिंग योर स्टडी कम्प्रीहेंसिवली, नॉट एज अ वर्ड, अगर आपने नहीं पढ़ा, यू कैन नॉट अटेम्प्ट दैट। जैसे ह्यूमनिज्म का ऐसे 2006 में या 5 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें हुआ क्या था कि जिनको अच्छी तरह से आता था, यानी जो लिटरेचर से जो जिनका बैकग्राउंड था, दे हैड अ स्कोर मोर देन 50। मगर जिनको पता नहीं था, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी थी, दे अटेम्प्टेड प्रीटी वेल फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव, दे आर फ्लंक्ड इट। क्यों? क्योंकि वो समझते थे ह्यूमनिज्म मींस ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म मींस ह्यूमैनिटी, while humanism itself is a different topic, that was a movement, a different literary movement. So वो इज्म नहीं करने जो इसकी जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आपको बैकग्राउंड नहीं है। फेमस इज्म हो गए तो वो तो भले कर लें। अदर देन दैट वो ऐसे नहीं करने जो कोटेशन पे हो, और वो कोटेशन उसका वो कोटेशन आपने क्लियरली कहीं पे पढ़ी ना हो। फॉर एग्जांपल है यू डू यू विन, उसका बाजार तो मीनिंग उसकी यही है, मगर शायद उसका कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो अगर वो कोटेशन में आता है तो। अगर कोटेशन में नहीं आता तो देन यू कैन अटेम्प्ट इट इन अ जनरल वे, इन अ वे दैट यू मे जस्टिफाई योर टॉपिक। तो ये चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, अब आते हैं ऐसे की तरफ। ऐसे के काइंड्स कितने होते हैं? अच्छा, आपकी जो भी क्वेरीज हो ना, आप चैट बॉक्स में सेंड कर दें, देन आई वुड बी डिस्कसिंग वंस आई एम डन विद माय लेक्चर। आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो पॉइंट आपको समझ में ना आए। तो ऐसे के काइंड्स कौन से हैं? ऐसे के, अच्छा आपने किताबों में तो कई काइंड्स पढ़े होंगे ना, यू माइट हैव स्टडीड, रेड, डिस्कस्ड, और यू माइट हैव बीन टॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐसे राइटिंग। उसमें डिस्कसिव ऐसे, आर्गुमेंटिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे, डिस्कसिव ऐसे, पता नहीं, देयर आर different kinds of essays. But then we get confused while reading different kinds, because they all, according to those books where we read them, they all demand a different strategy to attempt that certain kind. But for the purpose of learning and for the purpose of understanding of candidates, we have divided essay into two kinds only. And I hope and I assure you, all the essays of the world would fall under either category. Only two kinds. We have divided essays into two kinds. First is
argumentative essay, and another one is factual essay. These two kinds are there, only these two kinds. All the essays of the world would fall under the kind or category of either of these essays. Let me give you an example. Argumentative essays are those essays. Argumentative essays are those essays wherein you take a side. You take a side. वो ऐसे होते हैं जिसमें आप साइड लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. आप यहाँ साइड लेते हैं या फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कह लें यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ. जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. डू यू एग्री? So you ask a question from yourself whether you agree or not, or whether that is the case or not. Gender equality is a myth. Is it so? Is it the case? All these essays where we ask a question, where we take a side, where we ask a question from ourselves whether we agree or not, all these essays fall under either under this category, that is argumentative essay. While all those essays where you do not take a side, all those essays would fall under the category of factual essays. So we have basically divided essay writing into two kinds. Argumentative essays, where you take a side, you ask a question from yourself. For example, as I gave you example, gender equality is a myth. Do you agree? Is it so? Is it the case? Yeah, that is argumentative essays. All those essays wherein you do not take a side, you simply discuss what the phenomena is, what the fact is. All the essays fall under the category of factual essays. That, for example, if we convert that essay, gender equality is a myth, that is argumentative essay, then we can convert that very essay into a different into a factual essay, gender equality in Pakistan. So that become factual essay. You do not take a side. You do not take a position, a stance. You simply write. So these are only these two essays. If you have any confusion, any query, we'll be discussing whether you may have many questions and queries कि सर नहीं ये फलां ऐसे किस में आएगा कि जो भी केस essays है ना जिसमें आप साइड लें, एक पोजीशन लें, अपने आप से क्वेश्चन करें, all these essays fall under the category of argumentative essays. For example, democracy is the best revenge. Democracy is the best revenge. Do you agree? Is it so? Is it the case? That is argumentative essay. Democracy in Pakistan, factual. You do not take a side. You do not take a position. You do not ask a question from yourself. For the purpose of attempting, you may ask a question from yourself. Okay, what is democracy? Blah blah. But you do not take a side. Now, we'll be telling you. I would be telling you how to attempt either of the essays. अब ये तो हमने क्लियर कर लिया कि दो एसेज हैं, दो काइंड्स हैं ऐसे कि एक आर्गुमेंटिव है, एक फैक्चुअल है. तो हम ये देखेंगे. वन सेकंड प्लीज. सो ये तो हमने क्लियर कर लिया. वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसेज. आर्गुमेंटिव एसेज वेयरइन यू टेक अ साइड, यू टेक अ पोजीशन. देन देयर आर फैक्चुअल एसेज वेयर यू जस्ट डिस्कस. नाउ उसमें हमने देख लिया कि कौन सी चीज हो, कौन सा इंडिकेटर हो तो वो होगा आर्गुमेंटिव एसे, कौन सा इंडिकेटर ना हो तो वो होगा फैक्चुअल एसे. इन दोनों को अटेम्प्ट करने के दो टेक्निक्स हैं. आर्गुमेंटिव एसेज जो हैं उसको जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हम वी आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम आवरसेल्व्स एंड वी यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम हाउ. Though we may not, I'm again emphasizing, though we may not write how on our answer copy, but the word how must be reverberating in our mind. It must be echoing in our mind, because if we do so, we would be gathering the ideas, we would be generating the ideas. So as I said, we would start argumentative essay with the technique how. For example, gender equality is a myth. How gender equality is a myth? How gender equality is a myth?
then you prove it. When you ask yourself a question, how gender equality is a myth, then you prove in social sector and different arenas. While those essays that fall under the category of argument, factual essays, you do not ask a question from yourself, or you do not start with how, you start with what. For example, that essay, gender equality in Pakistan. What is gender equality? What is the status of gender equality? What are the hurdles to gender equality? What is the impact of not having a gender equality? What? Remember, we are repeatedly focusing on what. The indicator that we have, that is what. So what is gender equality? What is the status of gender equality? What are the repercussions of not having a gender equality? What is the solution for attaining gender equality? So we start factual with what, and we start argumentative with how. This is the technique, basic technique. Now I would be telling you, वो तो मैंने पहले आपको बता दी कि क्या करना है क्या नहीं करना. अच्छा, जैसे ही आपके हाथ में कापी आए ना, करना क्या है कि आपने वो जो ट्रेपर जिसे मैंने कहा, जैसे एजम वाले कहे या जो कोटेशन वाले कहे, उसको आप क्रॉस लगा दें, क्रॉस लगा दें. जो करना है उसको टिक लगा दें, टिक लगा दें. देन गो ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर, जो भी करना है देखने करना है क्या है, गो ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर आंसर कॉपी. वहां पे लिख दें रफ वर्क, रफ वर्क लिख दें. फिर जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आइडिया, जो भी थीम आपके जहन में आ रहा है रिगार्डिंग दैट टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट और दैट यू हैव थॉट टू अटेम्प्ट, उसको लिख दे जाएं, लिख दे जाएं. डोंट स्टॉप. इफ यू स्टॉप you get stuck. Remember, because you are already under stress. आपको पहले ही स्ट्रेस होता है. अगर आप स्टॉप करेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे. तो स्टॉप ना करें. Don't think whether the idea is relevant or irrelevant, whether the idea is strong or weak, whether the idea is historically correct or incorrect. Don't stop now. Don't stop now. Keep on doing that. Keep on doing that exercise that we call brainstorming. जिसको हम brainstorming, आप उसका नाम कुछ भी रखने, as Shakespeare said, what lies in name. तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें आप, कम से कम आधे घंटे तक करें. जो भी आइडिया आपके जहन में आता जाए ना, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं. कीप राइटिंग दोज आइडियाज, कीप राइटिंग दोज आइडियाज, कीप राइटिंग दोज पॉइंट्स रिगार्डिंग योर आउटलाइन. वंस यू आर डन इट, आधे घंटे हो दिया, कर दिया आपने, देन एक्सक्यूज मी, देन आप उसको फिर सॉर्ट आउट करें, जम्बल डाउन करें कि अच्छा कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, हिस्टोरिकली कौन सा पहले होना चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से कौन सा होना चाहिए, अच्छा कौन सा ये इररिलेवेंट है स्ट्राइक डाउन कर दें, वो बाद में करें. मगर अगेन आई एम्फसाइज, टॉपिक आपने लिख दिया, लास्ट पेज पे टॉपिक जरूर लिखें, एक सर्किल कर दें. जो भी आइडिया आपके जहन में आता जाए, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं. डोंट स्टॉप, प्लीज प्लीज डोंट स्टॉप. आई हैव सीन इफ यू स्टॉप यू वुड गेट स्टक. डोंट स्टॉप. अच्छा, होता ये है कि अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि सर आइडियाज आए कहाँ से, हमने तो टॉपिक पढ़े नहीं होते, कोई ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, आइडिया कहाँ से लाएं हम. I can assure you that you can pass an essay without having enough knowledge. I'm not saying zero knowledge. Without having enough knowledge, you can pass an essay, provided you follow certain tips and techniques. Wow, how? So ये जो क्वेश्चन है कि सर कहाँ से आइडिया आए, आइडिया ढूंढने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं. we find our ideas in the systems of society. हमें आइडिया, कोई भी एक टॉपिक है जिस पे आइडिया हमारे जहन में कुछ आइडिया नहीं आता, लुक इनटू द सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी, you would find ideas on it, even if you do not have enough knowledge about it, about the given topic. फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने, अच्छा वो कहाँ से आए, सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी. जैसे मैंने कहा कि वो आप आइडियाज देख लें फ्रॉम सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी, वहाँ से आपको आइडिया मिलेंगे. सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम. वहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे.
on a topic that you may not have studied prior to your exam. उस पे भी मिल सकते हैं आपको. जैसे डिस्कस करते हैं आप कैसे, फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. सपोज करें शायद आपने वो टॉपिक ना पढ़ा हो, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. तो आपको इन चीज़ों में अगर आप देखेंगे ना, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, तो उसको आपको सपोर्ट में नॉलेज भले ना हो, फैक्ट्स ना हो, डेटा ना हो, आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे आपको टू सपोर्ट योर टॉपिक. और थीसिस स्टेटमेंट वो भी हम डिस्कस करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है और टॉपिक सेंटेंस क्या होता है. तो आइडियाज आपको मिलेंगे सिस्टम से, सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी. ये आप नोट डाउन कर लें. जब भी आप whenever you are stuck and when you are unable to find arguments for the favor or for your topic to substantiate your point of view, look into the systems of society when you have such kind of especially such essays. So we will be discussing, for example, gender equality is a myth. So we took a side, we agreed that gender equality is a myth. Now, as I said, we would have to find ideas for our support to substantiate our point into the systems of society. Look at the economic system of society. हमने कहा gender equality myth है, that does not exist in reality. That's a myth. It's a hoax. Economic system में देखें, simple है भाई. आपके in your society, how many women earn? Definitely less than men. Less than men. Everybody agrees. इसके लिए you do not need to study many books. You can just have a look in your society. More women are in the field, even in agricultural field, industrial field. Industry में देख लें आपको ज़्यादातर मेल ही मिलेंगे. CEO देख लें आपकी टॉप क्लास कंपनीज के, क्या मिलेंगे आप, वो आपको वही मिलेंगे, मेल मिलेंगे. आपकी टॉप क्लास जो टॉप आपकी रिच पीपल हैं वो आपको मेल मिलेंगे. तो इकोनॉमिक्स छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज we will be discussing other points as well. तो आपको कंपनीज के या जहाँ भी आप देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम में आपको देखेंगे, you would find that gender equality is a myth because you would find that all the economic fields are dominated by men. While looking at the political system, मैंने कहा ना इन systems में देखना होगा, आपको ढूंढना होगा. Political system में अगर आप देख लें, तो अगर आप देखें कि आपके वहाँ भी आपको यही मिलेगा कि men have dominated the field. आप दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट देख लें, पाकिस्तान के हेड्स ऑफ स्टेट देख लें, दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट देख लें, पाकिस्तान के करंट आप कैबिनेट देख लें, उसमें हाउ मेनी वुमेन डू वी हैव. आपको एग्जैक्टली फिगर ना हो, यू कैन से दैट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी कैबिनेट इज डोमिनेटेड बाय मैन. मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज ना भी हो, तो आपके पास ये चीज़ें हो, तो नॉलेज हो तो वेल एंड गुड. उसमें ये आई कैन नॉट डिनाई कि नॉलेज होगी तो ज़्यादा स्कोर आएगा, ज़्यादा सब्सटेंस होगा उसमें. So मेरी पॉइंट ये कि आपको you don't need to panic while attempting the essay. When you find the list of essays and you see that there is none of the essays that you had prepared for, तो उस वक्त पैनिक नहीं, यहाँ से ढूंढ के आपको अपने आहिस्ता आहिस्ता आइडिया बनाने हैं. तो पॉलिटिकल सिस्टम में देखना, आपको हेड ऑफ स्टेट वुमेन नहीं मिलेगी, आपको पाकिस्तानी कैबिनेट में वुमेन बहुत कम मिलेगी. 1 second प्लीज. वो आपको पाकिस्तानी कैबिनेट में आपको नहीं मिलेगी, मतलब कम मिलेगी. मतलब एक जरताज गुल है, दूसरी वो एक ये फेडरल कैबिनेट में, तो यही मुझे जो याद आ रहा है, शी इज़ द ओनली वन. वो थी मैडम फिरदौसी, अब वो शी इज़ नो मोर. सिंध कैबिनेट की देख लें आप, हेड ऑफ स्टेट देख लें, हेड ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देख लें, यूएन के देख लें, ईसीओ के देख लें, सार्क के देख लें, यूरोपियन यूनियन विच इज़ नो मोर देयर, उसके देख लें, सब के आप देख लें. हेड ऑफ स्टेट आपको वहाँ पे you would find that there are men primarily and majority. Political system में देख लें आप, even America, the country which always talks about equality, gender equality and freedom and etc and etc. There has never been a female head of state. Economic system में हम देख लें, religious system में देखें, though it's a very sensitive topic to talk on religion. तो रिलीजियस सिस्टम में देख लें, उसको अगर यू डू नॉट टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन,
talk generally, you because it's a bit sensitive topic, especially in our perspective. तो उसको आप देख लें तो आपको prayer leaders, whether it's in Christianity, it's in Hinduism, it's in Judaism, it's in Islam, you do not see that prayer leaders are women. Prayer leaders are primarily men. There has never been a prophet, or there has never been a pioneer of any major religion from women. All are from men. And coming to the rights of women in different religions, so they are not given as many rights as are held by men, male counterpart. सोशल सिस्टम में देख लें, आपके मुआशरे में ओवरऑल देख लें कि उसको आपको पार्क्स में कौन नज़र आता है, आपको गाड़ियों में कौन नज़र आता है, आपको मेजर डिसीजंस कौन लेता है, पेरेंटिंग करते हुए, पेरेंट के भले पेरेंटिंग ज़्यादा उसका मदर का ऑर्डरमेंट, मगर बच्चों के लिए ज़्यादातर डिसीजन मेल ही लेते हैं. कल्चरली भी आप देख लें, जो टेबूज अटैच किए जाते हैं वुमेन के लिए, फॉर एग्जांपल जेंडर इज़ अ वीक, फीमेल इज़ अ वीक, टेबूज अटैच किए जाते हैं. और इफ फीमेल इज स्मोकिंग, it's taboo, it's considered a stigma. Even in advanced countries it's considered a stigma. Culturally, even culturally, gender equality is a myth. So I hope यहाँ से आपको टॉपिक मिलेंगे, यहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे. इवन ये तो मैंने कहा ना आपको, वो फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट है. फैक्चुअल में भी ये देखें, व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी. कोई भी एक सिंपल सी डेफिनेशन, कोई 2-4 डेफिनेशन अगर आप बना लें, अपनी सी बना लें, कोई इशू नहीं है उसमें ना. उसमें भी आप ये व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जेंडर इक्वलिटी इसी में डिस्कस करेंगे. अच्छा, इकोनॉमिक फील्ड में क्या स्टेटस है, वो फैक्चुअल से जा रहे हैं. जेंडर इक्वलिटी इन पाकिस्तान, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन इकोनॉमिक फील्ड, इन पॉलिटिकल फील्ड, इन रिलीजियस फील्ड, फिर आप वही लिखें. उसमें आप थोड़ा डिफरेंट आर्ग्यूमेंट मोल्ड करते हैं, वो मैं बताऊंगा कि उसमें आर्ग्यूमेंट कैसे मोल्ड करेंगे, इसमें आर्ग्यूमेंट कैसे मोल्ड करेंगे. So I think so far that point is clear, how argumentative essay is attempted and how factual essay is attempted, and from where we can find the ideas in the support of our essay. अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं where we can say the isolated outlines, जिसको हम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ से नहीं लेते, आप पर्सनैलिटी से लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. तो यहाँ पे आपको यहाँ से तो आर्गुमेंट मिल सकते हैं, मगर ज़्यादातर इस तरह के ऐसे में इस तरह के ऐसे में आप एग्जाम्पल्स लेते हैं पर्सनैलिटी से. मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. You'll be discussing the life of Prophet, peace be upon him. You'll be discussing the life of Qadi Azam Huli Jinnah. You'll be discussing the life of Nelson Mandela. You'll be discussing the life of King Martin Luther. You'll be discussing the life of Sir Syed Ahmad Khan. You discuss the life of other luminaries that have revolutionized different fields where they have worked. So इसको हम कहते हैं isolated outlines. उसमें ये फार्मूला शायद इफेक्टिव ना हो. So do not think that this is all time fit फार्मूला. उस तरह के ऐसे में शायद ये काम ना कर जाए ना. अच्छा, आते हैं अब उस बात पे कि अच्छा, ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को, वो होता है टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट. Believe me, currently, even before that, or even after that, there might have been many bureaucrats who have passed the essay without knowing what actually is thesis statement. So don't worry about that if you do not know, though I would be telling and discussing. The thesis statement means your take on a topic. Your take. Simple. It can be in first line. For example, gender equality is a myth. It can be direct or indirect. Gender equality is a myth. टॉपिक है आपका, आपने पहली लाइन लिख दी थी कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. ये आपका थीसिस स्टेटमेंट होगी. सो आपका जो टेक होता है वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है. ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी. इनडायरेक्ट कैसे होगा कि आप पहले जनरल स्टेटमेंट दे दें. फॉर एग्जांपल, genders in all over the world, or genders have rarely
enjoyed equality since time immemorial. आपने जनरल स्टेटमेंट दे दिया. फिर कहा कि looking at the different arenas or different fields of life ranging from economic to political, from religious to social, from cultural to educational, it is observed that male and female rarely enjoy equality. The farmer means male is often seen possessing more power, more authority, more economic resources than the latter, that is female. All these things point to the fact that gender equality is a myth. ये आपकी आखिरी लाइन में आपके आखिर बता दिया कि आपका ये स्टैंस है. आप ये पॉइंट्स इनडायरेक्टली आपने बता दिया. ये आपका स्टांस है, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है. सो आई होप so far that is clear. Then coming towards topic sentence. Topic sentence means the sentence that is about the topic. वो डेफिनेटली हर पैराग्राफ में आपका डिफरेंट टॉपिक होता है, क्योंकि एक पैराग्राफ में आप डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमी से रिलेटेड द स्टेटस ऑफ वुमेन, दूसरे में आप पॉलिटिकल करेंगे, तीसरे में रिलीजियस करेंगे, चौथे में आप सोशल करेंगे, कल्चरल करेंगे. तो पहला जो आपका जुमला हो, भले पहला जनरल हो या डायरेक्ट हिट हो, जो आपके उस टॉपिक को हिट करे, दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि लुकिंग एट द फील्ड ऑफ इकोनॉमी और लुकिंग एट द इकोनॉमिक फील्ड, द पिक्चर और द स्टेटस एंजॉयड बाय वुमेन इज डिसमल. ये आपका टॉपिक सेंटेंस है. ये आपका टॉपिक सेंटेंस जिसमें आप बताएंगे कि आप यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. आगे देन यू हैव बॉडी, देन यू हैव कंक्लूजन. बॉडी में आप प्रूव करेंगे कि हाउ वुमेन डज नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस विद रिगार्ड टू मैन और हाउ जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. आप प्रूव करेंगे. एट द एंड देन आपका कंक्लूडिंग लाइन होगी 10. उसमें आप ये चीजें लगे 10 हैंस therefore gender equality seems elusive. कोई भी फिर आप वर्डिंग, आप वर्ड डिपेंड्स अपॉन यू. आपको सिंपल therefore gender equality is a myth. अगर आप ज्यादा कंफ्यूजन में ना जाएं, ज्यादा उसमें परेशान में जाएं, तो ये भी लिख दें, दैट इज इनफ. अच्छा, वो ज्यादातर ये होता है सवाल कि आउटलाइन तो कैसे शुरू करें, कैसे लिखें आउटलाइन. वही मैंने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें आउटलाइन को. शुरू वाले आधा घंटा दें, फिर उसको ऑर्डर दें, फिर आप उसको करें. आपका पहला घंटा सवा घंटा भी जाता है ना आउटलाइन और इंट्रो पे, दैट्स इनफ. ये अब देन यू जस्ट हैव टू एलाबोरेट ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव रिटन. अच्छा, इंट्रो जो है दैट शुड टेल द एग्जामिनर व्हाट इज इनसाइड. अच्छा, जो इंट्रो है, जिस तरह से इंट्रो लिखते हैं आपकी बॉडी के पैराग्राफ भी उसी टेक्निक पे लिखे जाते हैं. एक आपका टॉपिक सेंटेंस होता है या थीसिस स्टेटमेंट जिसे कह लें, देन बॉडी जिसमें आप प्रूव करते हैं अपनी पॉइंट, देन कंक्लूड. तो इंट्रो पे आप क्या करेंगे, जिस तरह की आपने वो ऑर्डर दिया है आउटलाइन में, आप इंट्रो में वही ऑर्डर लगाएंगे अपने ऐसे को, भले वो इनडायरेक्टली आप डिस्कस कर लें. इनडायरेक्टली मेरी मुराद क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल कहा है कि जेंडर इक्वलिटी is a myth, then you have proved from economic field, from religious field, from social field, from political field, from political arena, you have discussed all this. तो उसमें आप लिखेंगे, जैसे मैंने कहा है कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. आप कहेंगे, आप इनडायरेक्टली ये चीजें लिखेंगे. आपने ऑर्डर लिखा, आपने पहले पॉलिटिकल लिखा है, देन आपने इकोनॉमिक लिखा है, देन आपने रिलीजियस लिखा है. फॉर एग्जांपल 3 ऑर्डर आप देख लेते हैं. तो आपका पहले आपने जनरल स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट हो गया कि वुमेन डू नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस विद मैन. वुमेन डू नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस विद मैन. आपने ये पहला आपने थीसिस स्टेटमेंट अपना लिख दिया. वुमेन डू नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस विद मैन. आपने एक थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया. तो मैंने कहा आपने ऑर्डर क्या लिखा था आउटलाइन में, पॉलिटिकल फील्ड आपने लिखी, फिर इकोनॉमिक फील्ड आपने लिखी, फिर रिलीजियस फील्ड. The economic world or the economic field or the economic arena portrays that women have less authority than men, ranging from the wages earned by women to the positions of power held by her. अब यहाँ पे बस आपने इनडायरेक्टली बता दिया कि यहाँ पे आपने वुमेन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक फील्ड में आप ये डिस्कस करें. देन मोर ओवर
political field is also not much promising for women. अब इस तरह से बताएंगे, is not much promising, wording different up to is not much promising for women, because because it's observed or it's seen that rarely there are the heads of women, there are heads of state which are from other gender, that is women. फिर आप ऑर्डर वही होगा, आपने पहला लिखा economic then political. Similarly, the religious domain is also dominated by male counterpart. Moreover, फिर आप इसको आगे लेते जाएं तो ऑर्डर आपका यही बनेगा इंट्रो में. इंट्रो आप उसी तरह से लिखेंगे, देन कंक्लूड कर देंगे. All these points prove the fact that gender equality is a myth. Now coming towards conclusion, conclusion में you do not write something new. एक तो ये कहा जाता है कि कंक्लूजन प्रॉमिसिंग होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए. यस, दैट शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक. होपफुल होना चाहिए मगर टू ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, टू होपफुल भी नहीं होना चाहिए. कंक्लूजन में यू समराइज व्हाट यू हैव रिटन एंड कंक्लूड इट and you give a final judgment on it. Now all in the light of all these preceding paragraphs wherein it has been discussed blah 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 blah, wherein it is proved that women do not enjoy equal status with men in economy, in religion, blah blah. It is conclusively stated, or it is concluded that gender equality is a myth. अच्छा, कोशिश करें कि आप ना कोई एक कोटेशन हो शुरू में, इंट्रो के शुरू में, इंट्रो के एंड में, कंक्लूजन में और हर पैराग्राफ में कोशिश करें कोई ना कोई कोटेशन बना लें. कोई उसमें भले आप टाइम लगा दें ना, कोई इशू नहीं है. तो कोटेशन बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ राइटर्स के नाम आने चाहिए. कोटेशन भले आप अपनी लिखें. आई यूज्ड टू डू दैट. कोटेशन में अपनी लिखता था, राइटर्स के नाम कुछ किताबें पढ़ी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है, तो वो नाम याद होते थे कि कौन कौन से राइटर ने क्या डिस्कस किया है. ये पता होता था कि कौन कौन से राइटर क्या डिस्कस करता है उसमें, डॉन में और अल जजीरा में और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में और अदर जर्नलिस्ट जो राइटर्स होते हैं न्यूयॉर्क टाइम में, तो पता होता था. तो उस तरह से आप भले कोटेशन उससे घुमा फिरा के अपने टॉपिक पे कोटेशन लिख दें, नाम उसका लिख दें. सो दैट्स ऑल फ्रॉम ऐसे राइटिंग. I hope I have cleared some of your concepts, though may not all the concepts. So let me take the questions from you guys and girls. अच्छा, एक तो ये है क्वेश्चन कुछ आपने पार्टिसिपेंट्स ने पूछा है. एक तो ये कि फैक्चुअल और आर्गुमेंट में शायद उनको कुछ कंफ्यूजन है. दूसरे हमारे कुछ एक कैंडिडेट ने लिखा है वेयर टू राइट थीसिस स्टेटमेंट. ओके, हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन थीसिस स्टेटमेंट? इट कैन बी वन इज इनफ. यू मे राइट टू बट वन इज इनफ. सर व्हाट इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल थीसिस स्टेटमेंट? भाई मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा, पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ा है, आई डोंट नो. मैं आपको आई एम नॉट डिस्कसिंग जो किताबों में लिखा है, आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. किताबों में तो मैंने जैसे आपको बताया कि देयर कैन बी 6 or 5 kinds of essay written in different books. Sir, what is this thesis statement of argumentative essay and factual essay? No difference. अच्छा, एक तो ये कि फैक्चुअल और आर्गुमेंटिव में आपको बता दूं कि फैक्चुअल वही मैंने जैसे कहा कि फैक्चुअल ऐसे, आर्गुमेंटिव ऐसे वो है जिसमें आप एक साइड लें, एक पोजीशन लें, आप एक स्टांस लें, आप अपने आप से क्वेश्चन करें. जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल future of nation is decided in classrooms. Future of nations is decided in classrooms. Do you agree? Do you agree? Is it so? Is it the case? Or is it not the case? You take a stance. You take a position. तो वो सारे जिसमें आप ये क्वेश्चन करें अपने आप से, अग्री या डिसएग्री करें, भले दोनों साइड भी दें, मगर आपने अपने से क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा है कि सारे ऐसे आर्गुमेंट वैसे हैं.
The rest, all the rest are factual essays. Status of education in Pakistan, वो भी एजुकेशन पे था, फ्यूचर ऑफ नेशन इज डिसाइडेड इन क्लासरूम्स. फिर आपने इसको थोड़ा डिफरेंट करके ऐसे दिया, स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन क्लास इन पाकिस्तान. ये फैक्चुअली से आपका थीसिस स्टेटमेंट दोनों की एक ही होगी. वो जाहिर है एक ही होने से मेरी मुराद है कि थीसिस स्टेटमेंट शुरू में ही होगी, शुरू में दें या आखिर में दें, आपके उसमें इंट्रो के आखिर में दें. शुरू में दें तो ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्ट हिट करें, क्योंकि शायद उनके पास इतना टाइम ना हो. तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रिटायर्ड प्रोफेसर्स, उनके पास सारे पाकिस्तान की कॉपीज जाती हैं, ऐसे ही कॉपी तो किसी एक के पास ही जाती है ना, तो उनके पास टाइम कहाँ होता है चेक करने का. आर्गुमेंट वैसे फिर डिफरेंस बिटवीन थीसिस स्टेटमेंट दोनों के लिए एक ही बनेगी, डिफरेंट नहीं बनेगी. टेल अस अबाउट लिमिटेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऐसे, हाउ मेनी लाइंस सफिशिएंट. लाइंस सफिशिएंट इंट्रो के लिए आपका 1 से 1.5 पेजेस इनफ. अगेन डू नॉट गो फॉर क्वांटिटी, गो फॉर क्वालिटी. सर हर पैराग्राफ में फैक्ट्स और फिगर देना इंपॉर्टेंट है या जस्ट लॉजिकल बात करके पैराग्राफ लिख सकते हैं. फैक्ट एंड फिगर हो तो ज्यादा अच्छा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर आपके पास फैक्ट एंड फिगर हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं हो तो फिर आप लॉजिक पे ही जाएंगे, फिर आप आर्गुमेंट्स पे ही जाएंगे. हाउ टू अटेम्प्ट एन एसे, वो तो मैंने सारा कर. इफ वी डोंट कोट एनी नेम और डोंट गिव रेफरेंस देन वी विल बी गिवन मार्क्स. नहीं, रेफरेंस दें तो ज़्यादा अच्छा है. कोई रेफरेंस दें, कोड दें तो ज़्यादा अच्छा है. और हाँ, जो कोड दें ना, जो रेफरेंस दें उसको आप बीच में लिखें ना. जो आपने ये सारा, ये आपका पेज है फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे पूरी लाइन लिखी, कोड आपका यहाँ आना चाहिए, कोड आपका यहाँ बीच में आना चाहिए, और उसको मार्कर से आप अंडरलाइन करें, क्योंकि हमने फैसिलिटेट करना है एग्जामिनर को. फैसिलिटेट करना का मतलब है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है हमें. कोहेरेंस मेंटेन करने किसी ने लिखा है कॉमन टू अनकॉमन वर्ड कहाँ से पढ़े जाते हैं. कॉमन टू अनकॉमन वर्ड ये तो मुझे पता नहीं क्या कहाँ से पढ़े जाते हैं. बाकी अच्छा तरीका ये है इम्प्रूव करने का कि आप डाउन पढ़ें, एडिटोरियल पे ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड वो वोकेब होती है जो प्रोफेशनल वोकेब यूज होती है ना, तो उसका एडिटोरियल पेजेस ज़रूर पढ़ा करें. और हाउ टू मेंटेन कोहेरेंस बिटवीन बॉडी पैराग्राफ्स. कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं. उसके लिए आपको कनेक्टर्स आने चाहिए ना, कनेक्टर्स. मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्दर, अदर देन दिस, अदर देन दैट, तो उसके लिए आप सिमिलरली इन द सेम वे आपको कनेक्टर्स आने चाहिए. दैट वुड क्रिएट कोहेरेंस. 2500 वर्ड्स कंपलसरी हैं या अगर टाइम कम हो. अगेन सी आई हैव सीन पीपल पासिंग ऐसे इवन ऑन 1000 वर्ड्स. अगेन इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट्स द क्वालिटी. आपने बात की आउटलाइन, वो क्लियर करें. आइसोलेटेड आउटलाइन मैंने वो बताया था आपको बेटा कि आइसोलेटेड आउटलाइन, मैंने कहा कि एक तो आउटलाइन आप यहाँ से ढूंढते हैं जो सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम. दूसरा आइसोलेटेड आउटलाइन का मतलब है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं आपके जहाँ पे आप इन सिस्टम से नहीं देखते आपके आर्ग्यूमेंट्स इन योर सपोर्ट. यू ट्राई टू गेदर आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम पर्सनलिटीज, क्योंकि वो ज़्यादातर वो पर्सनलिटीज भी होते हैं. जैसे मैंने कहा कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. अब इसमें आप पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम से आपको शायद मिल जाए, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. देन in those essays you try to direct go for personalities. Man is the maker of his own destiny, prophet peace be upon him, Khadim Muhammad Ali Jinnah, Nelson Mandela, Martin Luther King, all those who have changed the scenario of the world politics, all those who have revolutionized their nations. How many quotations minimum should be mentioned? No hard and fast rule. जितनी ज़्यादा अच्छी हो सके कोशिश करके हर पैराग्राफ में कोई लिख जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और इंट्रो के शुरू और एंड में हो और कंक्लूजन में हो तो ज़्यादा अच्छा है. पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. भाई मेरा पर्सनल तो ऐसे में बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ आर्ग्यूमेंटिव, क्योंकि आई फील कंफर्टेबल इन दैट. और पर्सनल एक्सपीरियंस दूसरा ये भी है कि अच्छा आपको एक सजेशन भी था पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से कि आप आउटलाइन बना लिया करें. आउटलाइन हफ्ते में 2-3 आउटलाइन बना लिया करें. उसमें ये होगा कि उसमें ज़्यादा तो टाइम का आपका लगता नहीं है. आउटलाइन में कितना आपको टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम. अगर घर में आउटलाइन बनाए, पेपर में शायद ज़्यादा ले, यहाँ पे तो आप बनाएंगे तो आप आउटलाइन बनाया करें.
भले आधे घंटा लग जाए, 15 डेली बेसिस पे कोशिश करके आउटलाइन बनाए। हफ्ते में ना हो भी हफ्ते में 3 बना लें, और हफ्ते में एक इंट्रो और एक कंक्लूजन लिखा करें। Sir, finally, if we write one small paragraph and other paragraph is more length from, so it will impact negative. कोशिश करके पैराग्राफ की लेंथ इक्वल रखी जाए तो दैट इज बेटर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास ज्यादा आर्गुमेंट्स होंगे। इट्स नेचुरल, ये सबके साथ होता होगा। कुछ ऐसा टॉपिक होगा जिसमें आपको फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक से रिलेटेड ज्यादा आपके पास आर्गुमेंट होंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होंगे, रिलीजियस से रिलेटेड ज्यादा होंगे, कल्चर से रिलेटेड नहीं होंगे। तो इट्स नेचुरल। So we call it a day today. We call it a day. ठीक है जी, thank you very much. I hope your confusions are clear. Thank you very much.